Good morning, everyone. My name is Megha Dayani and I'm your science teacher. We are going to start the new chapter, chapter number 13, Motion and Time. I request everyone to please join your hands and pray for a while. Okay, come back. This chapter is about motion and time, but if you recall in standard 6, you would have already learned something about motions, different types of motions and their examples. Okay, so let us first revise that and then move forward. So if we look around, we observe that many objects do not appear to move. They are stationary. जो move नहीं करते, एक जगह पे ही रहते हैं, those are called stationary. Many examples are given here. Yes, जैसे कि घर, table, chair, school, roads, poles, trees, mountains. These are all things which are not able to move. They are stationary. But what are these objects said? These objects are said to be at rest. इन objects को क्या बोला जाता है कि ये object rest में है क्योंकि वो move नहीं कर सकते. So an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to time. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है मतलब टाइम के हिसाब से अगर उस पर्टिकुलर चीज़ की, ऑब्जेक्ट की, थिंग्स की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, उसका मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है. पर हमने अभी जो जो एग्जांपल्स देखे वो तो कभी भी मूव नहीं कर सकते ना. रोड थोड़ी जा सकता है. टेबल चेयर हम मूव करें तो होंगे, वो खुद ब खुद नहीं हो सकते, है ना. सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम they do not change their position and that is the reason they are said to be at a rest. As you can see here, time is passing but table, chair and the house are stationary, so they are said to be at rest. But we daily observe many things around us which are moving also. जो continuous move करते हैं, continuous अगर नहीं करते फिर भी अगर कभी कभार देखो तो move करते हैं. जैसे कि हम हमारा example ले लें, कोई animal का example ले लें. We move with respect to time, we change our position. बट 24 घंटे एवरी टाइम वी डोंट कीप ऑन चेंजिंग. कभी कभी हम रेस्ट पे भी होते हैं. पर जब हम मूव करते हैं तब की अगर हम बात करें तो व्हेन आर दीज ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन? An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आप अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर सेड टू बी इन अ मोशन. तो रेस्ट ऑफ मोशन क्लियर हुआ. जैसे एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि ये कार है, ये कार कोई इंसान देखो चला रहा है, मीन्स जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे कार अपनी पोजीशन चेंज करेगा. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी दैट कार जो होती है वो मोशन ही करती है. समटाइम्स एज यू कैन सी हियर, कार इज मेनी कार्स आर देयर विच आर पार्क्ड, नो, साइड में पार्क की गई हैं, तो दे आर सेड टू बी एट रेस्ट. एंड सेकेंड वन, सी इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग, so it is said to be in a motion. So depending on that particular situation you can identify and give your answer whether the object is said to be at a rest or it is said to be in a motion. So वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोशन और रेस्ट का. अगर टाइम के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन चेंज करता है देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता इसका मतलब वो अभी रेस्ट पे है. Clear? An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. And an object is said to be at a rest when it is said to be at a rest if its position does not change with respect to time. Clear? Different types of motion देख लें. Motion क्या होता है वो हमने देख लिया. अभी types of motion हम revise ही कर रहे हैं which we have already learned in standard 6. Different kinds of motion were rectilinear motion, circular motion, rotational motion, and periodic motion. These were different kind of motions. Rectilinear motion हम किसको बोलते थे? Type of motion in which objects move along a straight line is called rectilinear motion. अगर straight line के motion, straight line path में अगर कोई object motion दिखा रहा है, move कर रहा है, that is object moving in a straight line. तभी क्या बोला जाता है? It is doing rectilinear motion. मैं अभी सिर्फ बहुत डिटेल में नहीं जा रही. इन ब्रीफ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ देम. अगर आपको और डिटेल में मोशंस के बारे में लर्न करना है तो आप स्टैंडर्ड 6 के वीडियोस में जाके देखो, चैप्टर नंबर 10 के. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इन डिटेल्स अबाउट देम. ओके. सर्क्यूलर मोशन क्या है? टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ सर्क्यूलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर मोशन. देखो यहाँ पे सर्कल है, अगर आप ये सर्कल जो है उसके ऊपर ही आप मूवमेंट कर रहे हो और कहीं नहीं जा रहे हो देन इट इज सेड टू बी अ सर्क्यूलर मोशन.
पीरियोडिक मोशन क्या है? मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में वो मोशन रिपीट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट मोशन को रिपीट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एज यू कैन सी हियर अ मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, स्विंग पे चाइल्ड बैठा है, वो रिपीट करेगा अपने मोशन को, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में होगा ना वो तो। सो दैट इज पीरियोडिक मोशन। लास्ट, रोटेशनल मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन वेर एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, एक्सिस पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट। अगर वो मूवमेंट तो कर रहा है, सर्कुलर ही घूम रहा है, पर ये सर्कुलर मोशन नहीं है, वो अपनी एक्सिस पे ही सर्कल में घूम रहा है, जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। क्लियर? सो दिस वॉज रोटेशनल मोशन। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो उस ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट कंटिन्यूअसली अपनी एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा है, दैट इज रोटेशनल मोशन। नाउ स्लो एंड फास्ट मोशन। It is common experience that the motion of some objects is slow while that of some others is fast. कोई ऑब्जेक्ट्स स्लो मोशन दिखाते हैं, कोई फास्ट दिखाते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। जैसे कि देखो, साइकिल ऑब्वियसली स्लो मोशन दिखाएगा, अगर हम कार की कंपैरिजन करें तो कार क्या दिखाएगा? फास्ट मोशन। हियर वन स्प्रिंट इज गोइंग ऑन, एक रेस हो रहा है, 100 मीटर रेस हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट है और फिनिश पॉइंट है, फिनिश लाइन है, उसमें ABCDE इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये सब लोग 100 मीटर रेस करेंगे। यस, जैसे ही स्टार्ट बोला जाएगा तो उस पर्टिकुलर टाइम को नोट कर दिया जाएगा जिस टाइम पे रेस शुरू होगा, एंड देन एवरीवन विल स्टार्ट रनिंग। फिर फिनिश लाइन पे जो सबसे पहले पहुंचेगा वो फास्ट मोशन दिखा रहा है, जो लास्ट में पहुंचेगा वो स्लो मोशन दिखा रहा है। दिस इज ईजी नो? कब? ये आराम से हम कब पता कर सकते हैं? जब हमें डिस्टेंस पता हो कि इतने डिस्टेंस में ही ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता है टाइम। देखें, अगर हम पहले टाइम का डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस हमें पता है, पर कौन कितना टाइम ले रहा है वो भी देखना है ना। देखो उस रेस का रिजल्ट क्या आया, ABCDE, और रैंक दे दिए, देखो 2 1 4 3 5। इसका मतलब क्या होगा? जो सबसे पहला फर्स्ट आया उसने सबसे कम टाइम लिया होगा, मतलब कि B पर्सन। और बाजू में देखो टाइम मेंशन किया है सेकेंड्स में, 20 30 18 25 एंड 35 सेकेंड्स। तो B का क्या होगा? करेक्ट 18 सेकेंड्स होगा, क्योंकि सबसे कम टाइम उसने लिया होगा, तभी वो फर्स्ट आया होगा, फास्ट मोशन दिखाया होगा। देन हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रख सकते हैं। सेकेंड A आया तो उसको 20, D थर्ड आया तो 25, C फोर्थ आया तो 30, E फिफ्थ आया तो 35 सेकेंड। सो दिस वुड बी द टाइम विच दे वुड हैव टेकन। तो सबसे फास्टेस्ट मोशन मूवमेंट किसने दिखाया? A पर्सन ने। और फास्टेस्ट B ने दिखाया 18, और स्लोएस्ट किसने दिखाया? जो 5th पोजीशन पे आया, यानी कि E 35 सेकेंड्स। क्लियर दिस मच? तो स्लो मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन मोर टाइम। ज़्यादा टाइम लेते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस जो था वो 100 मीटर का जो डिस्टेंस था उसमें ज़्यादा टाइम लिया तो स्लो मोशन हो गया। और कम टाइम में उतना डिस्टेंस कवर किया, मतलब लेस टाइम में एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम, तो वो क्या हो गया? फास्ट मोशन। जैसे यहाँ पे है 100 मीटर ही कवर करना था, पर सपोज हमें डिस्टेंस पता नहीं, जैसे मैंने पहले बोला हम बाद में डिस्कस करते हैं ये चीज़, तो चलो अभी डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये कार अपने मूवमेंट दिखा रहे हैं, मोशन में है अभी। हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन फास्ट मूवमेंट कर रहा है, कौन स्लो मोशन दिखा रहा है? यहाँ पे इतने सारे लोग जा रहे हैं, कैसे पता करेंगे विच वन इज़ मूविंग फास्ट एंड हु इज़ स्लो? So the most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. Convenient way, आसान तरीका कौन सा है? अगर हमें दो या तो उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में हमें देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्पीड में, मतलब फास्टर मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, किस में? टाइम, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम है। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट या तो 1 आवर। सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर।
हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन टाइम इंटरवल जो भी हमने फिक्स किया है 1 मिनट 1 आवर 1 सेकेंड, उतने टाइम लिमिट में किसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो फास्टर मूवमेंट दिखा रहा है और सबसे कम वो स्लोअर मूवमेंट दिखा रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो बहुत सारी कार्स जा रही हैं। अगर मैं टाइम के हिसाब से अगर देखूँ तो देखो 2 कार्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए, एक इस रोड पे एक इस रोड पे। अगर हम दोनों कार को कंपेयर करें तो हमने पता किया कंपैरिजन में कि कार 1 जो थी उसने टाइम अगर हम देखें तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और कार 2 का देखो तो उसने 1 मिनट में 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो दोनों का टाइम तो सेम है, यूनिट टाइम कौन सा लिया है 1 मिनट। तो 1 मिनट में जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन कवर कर रहा है, कार 1 जो कि 1 किलोमीटर है। तो कार 1 फास्ट मूव कर रही है और कार 2 स्लो। दैट मीन्स कार 1 इज शोइंग फास्ट मोशन एंड कार 2 इज शोइंग स्लो मोशन। क्लियर। देखो अगर नहीं समझ में ऊपर देखो एक और मैंने पिक्चर दिखाया है। कार 1 देखो 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो देखो वो रेड लाइन से दिखाया है। कार 2 ब्लू कलर से दिखाया है। तो दोनों का डिस्टेंस कंपेयर करो, किसका कम है, 0.8 किलोमीटर वाला कार 2 का वो कम है ना। सो जो कम मूवमेंट कम डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज शोइंग स्लो मोशन। क्लियर। अभी एक नया टॉपिक हम लर्न कर रहे हैं ये फास्ट और स्लो मोशन के हिसाब से। नाउ इट इज स्पीड। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे पता किया इसने इतने यूनिट टाइम में, मतलब 1 आवर 1 मिनट और 1 सेकेंड जो कुछ भी है यूनिट टाइम, उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो उसकी स्पीड हो गई है ना। उसमें टाइम भी कैलकुलेट करना है हमें। सो व्हेन कैन वी फाइंड आउट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो बाय कैलकुलेटिंग इट्स स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूवमेंट दिखा रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मोशन दिखा रहा है ना। तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या होगा, उसका हायर स्पीड होगा, और जिसका लोअर स्पीड कम स्पीड होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर। अभी स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल जितना टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं 1 आवर 1 मिनट व्हाटसोएवर, उसने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है स्पीड, ये कब होगा, जैसे हमारा फिक्स नहीं होता ना। जैसे हमने बोला हम कभी कभी रेस्ट पे हो जाते हैं, कभी हम रुक जाते हैं, कंटिन्यूसली तो कोई भी मूव नहीं करता है ना। अगर हम रेस का हमने वो एग्जांपल लिया ABCD पर्सन रन कर रहे थे, तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट ऐसा था जिसमें वो कंटिन्यूस मूव कर रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है जब हम वो नहीं देख पाते है ना। तो टोटल जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन अगर हम करेंगे तो वो स्पीड हो जाएगा। इसके ऊपर से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आएंगे। सम ऑफ देम आई विल एक्सप्लेन हियर एंड सम आई विल एक्सप्लेन यू इन द लाइव क्लासेस। तो फॉर्मूला याद रखना है ना। सो स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सपोज कोई एक कार या तो कोई भी व्हीकल है वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 1 आवर में, तो स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, दैट इज 60 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर। तो उसकी स्पीड क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। नीचे जो होता है उसको पर आवर बोलते हैं। पर आवर मतलब हर 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर व्हीकल, वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। So when we say that a car is moving with a speed of 60 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 60 kilometers in 1 hour. 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो ABCD ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस कवर्ड है 10, 15, 8, 10, 20 मीटर, और टाइम टेकन सेकेंड्स में दिया है सारा 2, 5, 8, 10। ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, टाइम है, डिस्टेंस है, मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है और फिर चेक करना है कि कौन सबसे स्लोएस्ट है और कौन सबसे फास्ट है ना। वो चेक करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, स्पीड कैलकुलेट करूँगी। तो सबसे पहले A पर्सन का देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 10, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स।
सो अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 5 10 होता है। ओके, सो ए पर्सन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 5 मीटर जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन, ऑब्जेक्ट ए। उसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट बी का फाइंड करें तो ऑब्जेक्ट बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 15 मीटर, टाइम कितना लिया है, 5 सेकेंड्स। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 15, टाइम कितना है 5, सो वी विल डिवाइड 15 विथ 5, सो योर आंसर वुड बी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3। तो अगर मैं सिर्फ ए और बी की बात करूँ तो फास्ट मूवमेंट कौन दिखा रहा है, फास्टेस्ट कौन है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज़ ए, और स्लो कौन दिखा रहा है, बी। पर अगर हम सारे देखो ऐसे फाइंड कर लें उसी हिसाब से डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला है ना, तो सी का क्या आएगा, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, डी का 1 मीटर पर सेकेंड, ई का 2 मीटर पर सेकेंड। अभी सबका कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है एक सेकेंड में, ऑब्जेक्ट ए। सो ऑब्जेक्ट ए इज़ द फास्टेस्ट। और सबसे स्लो कौन होगा, जो सबसे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो कि है ऑब्जेक्ट सी एंड डी। यस, क्योंकि उनका 1 मीटर है, तो मिल गया हमें फास्टेस्ट और स्लोएस्ट। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज योर फॉर्मूला। तो इस हिसाब से हमने स्पीड तो कैलकुलेट कर ली, पर कभी कभी हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ट्विस्ट करके पूछते हैं, हमें स्पीड दे देते हैं, डिस्टेंस या तो टाइम, दोनों में से कोई भी एक चीज़ देते हैं और दूसरी हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, उनका फॉर्मूला डिराइव कर लें हम डिस्टेंस और टाइम का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड के नीचे सपोज करो कुछ नहीं है तो स्पीड अपॉन हम 1 लिख देते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। आई होप आप सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है वो सब पता है, आपने मैथ्स में लर्न किया होगा ऑलरेडी। उसी तरीके से अगर मुझे टाइम का फॉर्मूला ढूंढना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीनों फॉर्मूलाज यहाँ पे क्लियर हैं सबको। स्पीड का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, टाइम का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर इस तरीके से याद नहीं रह रहा है तो एक नई मेथड बताती हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के अंदर एक टी शेप किया है, और टी शेप बनाने के बाद उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया टी शेप बना के, और ऊपर वाले हिस्से में डी लिखा, नीचे लेफ्ट में एस लिखा और राइट में टी लिखा। जैसे जीएसटी टैक्स होता है, आप याद रखना डीएसटी, तो इस हिसाब से आप लिखोगे डी, एस और टी। अभी बारी बारी अगर हमें सबका फॉर्मूला ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, सपोज मुझे स्पीड एस का फॉर्मूला ढूंढना है तो एस को छोड़ के आप डी और टी देखो, डी और टी ऊपर नीचे हैं तो हम फॉर्मूला में भी उसको ऊपर नीचे लिखेंगे, मतलब क्या करेंगे, डिवाइड। समझ में आया है ना। सपोज मुझे टी का फाइंड करना है तो टी को आप छुपा दो तो सामने डी और एस क्या है, वो भी ऊपर नीचे हैं, डिवीजन में दिख रहा है, वो ट्राइंगल में ही ऑब्जर्व करना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सपोज मुझे डिस्टेंस का फाइंड करना है तो डिस्टेंस में देखो स्पीड और टाइम दोनों नीचे हैं, अगर हम डी छिपा दें तो एस और टी क्या डिवीजन में दिख रहे हैं इस ट्राइंगल में, नहीं, वो सामने सामने है, मतलब उसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी हम नया लर्न करते हैं यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस, टाइम एंड स्पीड। तो यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड अगर हम देखने जाएं तो टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड है, उसका सिंबल होता है एस, स्मॉल एस। लार्जर यूनिट्स कौन से हैं टाइम के, तो मिनट और आवर्स। डिस्टेंस का बेसिक यूनिट क्या है, मीटर, उसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम। अदर यूनिट्स क्या है, कौन से हैं उसके, सेंटीमीटर और किलोमीटर। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आ सकते हैं, इसमें से लर्न करके याद कर लेना। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड का यूनिट ढूंढने जाऊं तो क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर डिस्टेंस का यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट मीटर, टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, एस। तो स्पीड का ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एम अपॉन एस, दैट इज मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर मैं वहाँ पे मीटर की जगह पे किलोमीटर यूज़ करूँ, सेंटीमीटर यूज़ करूँ डिस्टेंस में, और टाइम में अगर सेकेंड की जगह पे मिनट या तो आवर यूज़ करूँ, तो हम उसको उस हिसाब से भी यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मीटर पर मिनट,
सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पर बेसिक यूनिट अगर स्पीड का पूछा जाए तो क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और जो भी सिंबल होता है ना, वो सारे सिंबल हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में वी राइट 50 किलोमीटर है, नॉट 50 किलोमीटर्स, KM लिखेंगे, KMS नहीं लिखेंगे। वैसे ही CM सेंटीमीटर लिखेंगे, CMS नहीं लिखेंगे। यूनिट जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ओके। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। A cyclist covers the distance of 30 किलोमीटर in 2 hours. Calculate its speed. स्पीड कैलकुलेट करना है, मतलब पहले हम स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो साइकिलिस्ट, 30 किलोमीटर। टाइम कितना ले रहा है, 2 आवर्स। तो चलो हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे 30 किलोमीटर और टाइम की जगह पे 2 आवर। डिवाइड करो तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 15 जा 30। सो आंसर क्या आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो साइकिलिस्ट ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर जितना ट्रैवल कर रहा है, 15 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। एक और देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। 2 स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर्स है। ट्रेन जो है वो 4 घंटे ले रही है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ट्रेन की स्पीड क्या है वो ढूंढना है हमें। अगेन स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर, टाइम कितना है, 4 आवर। अगर आप इसको डिवाइड करो तो 4 60 या 240 होता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो देखो 4 बार 60 + 60 + 60 + 60 करो तो आंसर क्या आता है, 240 ही। तो हो गया ना प्रूफ भी, ठीक है। Now, the speed of the train is 72 किलोमीटर पर आवर. Find its speed in मीटर पर सेकेंड. इसमें यूनिट्स में सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है, हमें डिस्टेंस या टाइम कुछ फाइंड नहीं करना है। स्पीड हमें दे दी गई है और डिस्टेंस और टाइम हमें फाइंड नहीं करना है, वो ऑलरेडी दे दिया है। कितना है, 1 घंटे में 72 किलोमीटर्स, पर हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो पहले हम डिस्टेंस करेंगे। तो हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। पर यहाँ पे कितना दिया है, 72 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 72 × 1000, दैट इज 72,000 मीटर। तो 72 किलोमीटर मतलब कितने मीटर्स हो गए, 72,000 मीटर। उसी तरीके से अगर सेकेंड्स का करें तो 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होती हैं, 3600 सेकेंड्स होती हैं। क्यों, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, इसलिए 60 × 60, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 72,000 अपॉन 3600, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो हो गया कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकेंड में। समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय राम टू रीच हिज स्कूल at a distance of 5 kilometer in a taxi which travels at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आपको डिस्टेंस दे दिया गया है, स्पीड भी दे दी गई है, फाइंड क्या करना है, टाइम। तो हम टाइम का फॉर्मूला करेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या है इसमें, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेंगे। डिस्टेंस कितना दिया है, 5 किलोमीटर, स्पीड कितनी दी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसको सॉल्व हम करने जाए तो किलोमीटर किलोमीटर भी कट हो जाएंगे और 5 8 जा 40 होता है। तो आंसर क्या आएगा, 1/8 आवर आएगा। क्लियर। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, आवर मिनट के सेकेंड क्या होता है, करेक्ट, सेकेंड होता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स। अभी हर एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे तो मूवमेंट दिखाएगा नहीं, वो कांस्टेंट स्पीड पे तो मूव करेगा नहीं, है ना। कभी रुक जाएगा बीच में, कभी सपोज जा रहे हैं तो वो पहली 5 मिनट फुल स्पीड में गए, बाकी की 5 मिनट स्लो गए, बीच में 1 मिनट कभी स्लो हो गए, कभी रुक गए, है ना। ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या, वो कांस्टेंट स्पीड पे मूवमेंट नहीं दिखाता है। So in everyday life, we'll seldom find objects moving with a constant speed over a long distance or for a long duration of time.
तो हम क्या करेंगे, उसमें एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना भी टोटल टाइम लिया और टोटल डिस्टेंस कवर किया है ना, बीच में रुक गए तो भले रुक गए, पर हमें सपोज मोरबी से राजकोट जाना है, हम बीच में कहीं रुके पर नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमने जितना कवर किया राजकोट तक पहुंचने के लिए वो पूरा लेंगे। ऐसे नहीं कि हम जहाँ रुके वहीं तक का डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जो कि है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, but that we will continue in the next session. For this much is enough for today. Stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.